تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 عالم کو پیدا فرمایا، اور جتنی بھی جاندار مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تقریباً سب میں ہر مخلوق میں جو جاندار ہے نرجیو نہیں ہے، سجیو نر اور مادہ، اور انسان اشرف المخلوقات، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر انسان کو اللہ نے بنایا۔ اسی انسان سے پروردگار عالم نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ کہ لوگوں، اے انسانوں، اس اللہ سے ڈرو۔ کس اللہ سے؟ ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے ایک جوڑے سے، ایک جان سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے مرد اور عورت کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ نے پائی۔ اب اسی انسان کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر یوں سے حکم دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ انسان کی شادی انسان سے ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز اپنے جنس سے انس اور محبت۔ مثلا کوئی انسان اکیلا ہے، کہیں بیٹھا ہے، کوئی نہیں ہے، سنسان ہے، لیکن وہاں دوسرا انسان آ جائے تو اسے راحت مل جاتی ہے۔ دوسری مخلوق ہے تو اسے راحت نہیں۔ انسان وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، اس سے چین پاؤ، اس سے راحت پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان الفت اور محبت رکھی۔ یہی وجہ ہے لڑکا کہیں کا رہنے والا ہے، لڑکی کہیں کی رہنے والی ہے، اور جیسے ہی قاضی صاحب نے دو لفظ کہلوا کیا دیے، دولہے نے دلہن نے قبول کیا کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، نکاح مکمل ہوا کہ پھر آپ دیکھیں اگر دولہے کو کچھ ہو جائے تو دلہن بے چین ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ دلہن کو کچھ ہو جائے تو دولہا پاگلوں کی طرف پھرتا نظر آتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کا فرمان کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہیں تمہارے درمیان الفت اور محبت رکھی ہے۔ جب شادی کا انعقاد ہوتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے، تو لڑکی کہیں کی ہو، لڑکا کہیں کا ہو، جیسے ہی یہ بات مکمل ہوتی ہے اللہ دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضرات، آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جب اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کریں تو ہمیں کون سی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جیسی ہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے یا بیٹی جوان ہونا شروع ہوتی ہے، ماں باپ کی آنکھیں ادھر ادھر اس کے جوڑے کی تلاش میں پھرنے لگتی ہیں۔ کوئی شادی کی محفل ہو، کوئی میلہ ہو، یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس میں بھی لوگ تلاش کرتے ہیں۔ یہ میں ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ رشتہ تلاش کرنا ہے تو کیسا تلاش کرنا چاہیے؟ آج آدمی دیکھتا ہے، اگر مان لیجیے کہ لڑکے کی شادی کرنا ہے اور لڑکے کے لیے کسی لڑکی کو تلاش کرنا ہے،
لڑکے کی شادی کرنا ہے تو اس کا جوڑا لڑکی اس کو ڈھونڈے گا کہ میں اپنی بہو گھر میں لاؤں تو کس انداز کی ہونا چاہیے. لوگ کوئی دیکھتا ہے کہ مالدار ہوگا, لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے, اس کے کتنے بھائی ہیں, کیا کماتے ہیں, جہیز کتنا دیں گے, موٹر سائیکل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں, اور 4 پہیا کرتے تھے تو بہت اچھی بات ہے کہ نہیں. اب تو 4 پہیا نہیں کہ 4 پہیا. یہ ہماری کیٹیگری ہو گئی. کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہو, حسین و جمیل ہو, لمبی زلفیں ہوں, ہونٹ جو ہے گلاب کی پنکھڑی جیسے ہو, آنکھیں ہرنی جیسی ہو, وغیرہ وغیرہ. ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری بہو اتنی اچھی ہو, اتنی بولی ہو. بولو یہی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہونا چاہیے, خاندان اعلیٰ ہو, اونچا ہو, بڑا ہو, اچھا ہو. کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں دولت کے نشے میں کہ اس کا ایمان کیسا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے, یہ نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے ہیں کہ دولت پیسہ کتنا لے کر کے آئے. اللہ کے رسول پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من تزوج امرأة لمالها وَلِعِزِّهَا لَمْ يَزْدِ اللَّهُ إِلَّا ذِلًّا وَإِلَّا فَقْرًا. کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے تاکہ عزت بڑھ جائے, وہ مالدار ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ذلت اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہیں. میرے نبی نے بیان فرمایا کہ تمہیں کیسی لڑکی تلاش کرنا چاہیے, تمہیں کیسی بہو کا انتخاب کرنا چاہیے. مشکاہ شریف کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. کہ 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے, یا تو اس کے حسن کی وجہ سے, یا تو اس کے خاندان کی وجہ سے, یا تو اس کی مالداری کی وجہ سے, اور یا تو اس کی دینداری کی وجہ سے. میرے آقا فرماتے ہیں تریبت یدا فاظفر بذات الدین, تریبت یدا کہ تم دیندار لڑکی تلاش کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جب اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا آپ انتخاب کریں تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ آپ دینداری دیکھیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم اس کو جمال تو دیکھتے ہیں, خوبصورتی تو دیکھتے ہیں, پیسہ تو دیکھتے ہیں, مالداری تو دیکھتے ہیں, آج ہم خاندان دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں دیکھتے لڑکی ایمان والی ہے کہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے, نمازی ہے کہ نہیں ہے, پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے, روزہ رکھنے والی ہے کہ نہیں ہے, ماں باپ کی فرما بردار ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے الٹا دیکھتے ہیں, مالداری کو دیکھتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہمارا معاملہ اور معاشرہ بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اپوزٹ ہو گیا ہے, الٹا ہو گیا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ ہمارا نام صرف رجسٹروں میں, آدھار کارڈ پر اور دیگر مقامات پر صرف مسلمان رہ گیا ہے. نہ تو اسلامی سوچ ہے, نہ تو اسلامی فکر ہے, نہ تو اسلامی تہذیب ہے, نہ تو اسلامی تمدن ہے. آج اتنے نوجوان بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں شاید کوئی ایسا نوجوان ہوگا جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو, جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو, اور اس موبائل میں یوٹیوب نہ ہو, فیس بک نہ ہو, واٹس ایپ نہ ہو, اور دیگر بھی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہمارے گھر کا بچہ ہماری نظروں کے سامنے پلتا ہے, پڑھتا ہے, جوانی کی تحریک پر قدم رکھتا ہے. ہم اگر بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے, آپ کہیں کہ بیٹا کھیت میں جو ہے گنے کی چھلائی ہو رہی ہے وہاں چلے جاؤ, بیٹا نہ جائے تو آپ ڈانٹتے ہو, ڈانٹتے کہ نہیں ڈانٹتے ہیں. آپ کی دکان چل رہی ہے, اپنے بیٹے سے آپ کہیں بیٹا دکان پر چلے جاؤ, بیٹا نہ جائے تو آپ ڈانٹتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ بیٹا جا کر بازار سے سبزی لے آؤ, آپ کا بیٹا نہ جائے تو آپ ڈانٹتے ہو. توفیق کرتے ہیں آپ کہ میری بات نہیں مانی. عزیزان ملت اسلامیہ, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کی بات, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ
डांटते हैं, लेकिन कहाँ चला जाता है तुम्हारा वो ईमान, कहाँ चली जाती है तुम्हारी वो गैरत कि जब अजान होती है और तुम्हारा बेटा मस्जिद नहीं जाता है तब आप नहीं डांटते हैं कि बेटा मस्जिद क्यों नहीं गए हो, बेटा रमजान का महीना है तुमने इसके रोजे क्यों नहीं रखे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, असल बात गलती लड़कों की नहीं है, गलती माँ बाप की होती है कि माँ बाप ऐसे वक्त में अपने बच्चों को नहीं संभालते हैं। याद रखो, आज लोग अपने बच्चों को तरह तरह की चीजें सिखाते हैं, लेकिन जब याद रखो जब कल मैदान महशर कायम होगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे के लिए कारोबार के लिए दुकान खुलवाई थी कि नहीं खुलवाई थी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने बच्चे को मोबाइल क्यों नहीं दिलवाया था, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे को खेलने के लिए मैदान में क्यों नहीं भेजा था, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे के लिए जो है कारोबारी माशियत को क्यों फरोग नहीं दिलाया, लेकिन ये पूछा जाएगा कि अपने बच्चे को दीन क्यों नहीं सिखाया था, अपने बच्चे को नमाज क्यों नहीं सिखाई थी, अपने बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा गुलाम क्यों नहीं बनाया था, अपने बच्चे को आशिक मुस्तफा क्यों नहीं बनाया था, ये आपसे पूछा जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज दीन की कमी है कि आज हमारे बहन हमारे भाई और हमारे बच्चे आज दीन से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। जो हमारे आबा और अजदाद में दीनदारी थी, जो हमारे बाप दादा में दीनदारी थी, वो आज हम में नहीं है, और जो हम में है अगर यही हाल रहा तो हमारे आने वाली नस्लों के अंदर इतनी भी दीनदारी बाकी नहीं रह जाएगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दीनदारी सिखाएं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज शादी के मौके पर मुराद जमा हुए हैं, शादी में भी दीनदारी ही आपको देखना है। ज़माने रसूल की एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके एक प्यारे और चहीते सहाबी हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म दीन सीखने के लिए आया करते थे। आका की बारगाह में हाजिर होते, इल्म सीखते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, रसूल की रहमत जोश में आई, फरमाया या जुलैबीब अला तुज़व्विज, ऐ जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। वो अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मुझे अपनी बेटी कौन देगा, मैं तो गरीब और मुफलिस आदमी हूँ। अल्लाह के रसूल फिर फरमाते हैं अला तुज़व्विज, तुम शादी नहीं करोगे। वो फिर अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मेरे निकाह में अपनी बेटी कौन देगा, मेरे पास हुस्न व जमाल नहीं है। आका फिर फरमाते हैं ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे। वो फिर अर्ज़ करते हैं ऐ मेरे आका मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मेरे माँ बाप आप पर निसार हो जाएं। ऐ मेरे आका मेरे पास शोहरत नहीं है, मैं नामवर नहीं हूँ, मैं फेमस नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी कौन देगा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं या जुलैबीब इज़हब ज़ाकल बैत बिल अंसार व कुल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुहुम अस्सलाम। कि ऐ जुलैबीब अंसार के फलां कबीले में चले जाओ, खानदान में चले जाओ और फलां शख्स से कह दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भेजा है और ये हुक्म दिया है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों और हमारी बहनें, तवज्जो से सुने। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये कोई नाविल नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि आप सुनकर अपने कानों से निकाल दें। ये तारीख की वो हकीकत है कि जिस पर आज मुसलमानों को बेहद अमल करने की जरूरत है। और हज़रत जुलैबीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से चले और अल्लाह के रसूल ने जिस खानदान का पता बताया था उस खानदान में पहुंचे और फिर जिस शख्स के बारे में फरमाया था उस शख्स का घर पूछते हुए पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? आप जवाब देते हैं अना जुलैबीब। बाहर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई कौन? आप जवाब देते हैं कि मैं जुलैबीब हूँ। अंदर से जवाब मिलता है क्यों आए हो? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा। कहते सुभान अल्लाह। पूरा बंदा बोले, पीछे वाले बोले जब ये सुना कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है तो साहिब खाना मकान के मालिक जल्दी से घर से बाहर आए और सलाम दुआ हुआ, अपनी बाहरी कमरे में बिठाला और उसके बाद चाय नाश्ता कराया, मेहमान नवाजी की उस जमाने के हिसाब से। उसके बाद फिर पूछा कि बताइए कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। अब इतना सुनना था कि पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि कहा हम और कहा अल्लाह के रसूल, हमें अल्लाह के रसूल सलाम भेज रहे हैं। पूरे घर के लोग खुश हो गए। माँ
बहन भाई जो भी थे उस घर के अंदर सभी खुश हो गए। उसके बाद फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा है, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने मेरे पास भी क्यों भेजा है, कोई तो वजह होगी। वो अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें ये हुक्म देकर भेजा है कि तुमको सलाम पहुंचा दूं, और नबी ने ये हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाथे जुलेबीब कोई हट्टे कट्टे नौजवान नहीं थे, कोई हसीन व जमील नौजवान नहीं थे, खूबसूरती नहीं थी उनके पास में, लेकिन अल्लाह के रसूल ने भेजा था, इसलिए वो हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि अपनी बेटी का हाथ आप मेरे हाथ में दे दें, यानी अपनी बेटी का निकाह आप मेरे साथ में कर दें। गोया कि वो निकाह का पैगाम लेकर हाजिर हुए थे अल्लाह के रसूल की तरफ से। लड़की के बाप ने कहा अच्छा जरा ठहरो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर हमारे घर में कोई ऐसा रिश्ता आता है, लड़का हाफिज हो या आलिम हो या कारी हो या मौलाना हो या दीनदार और नमाजी हो, तो हम पहले देख लेते हैं मालदार है कि नहीं है, खूबसूरत है कि नहीं है, हैंडसम है कि नहीं है, कमाता कितना है, ये देखते हैं। शायद लड़की की माँ ने यही समझ करके जब लड़की के बाप ने पूछा, उससे मशवरा लिया कि अल्लाह के रसूल ने इस नौजवान को भेजा है, इसे आप देख रहे हैं ये हसीन व जमील नहीं है, ये सांवले रंग का है, ये सांवले रंग का आदमी है, इसके साथ में अपनी बेटी का निकाह करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा है। लड़की की माँ ने कहा ना 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 ना, मुझे ऐसा नहीं हो सकता है, क्या मेरी बेटी के लिए यही एक नौजवान रह गया है, मैं अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स के हाथ में हरगिज़ नहीं दे सकती हूँ कि जिसके पास ना मालो दौलत है, ना शोहरत है और ना हुस्न जमाल है, मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी बेटी का निकाह कैसे कर सकती हूँ। लड़की के बाप और लड़की की माँ में ये मशवरा होने लगा। लड़की का बाप कह रहा था कर दो, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। लड़की की माँ कह रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी बेटी कहा हुस्नो जमाल की मलका, और मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए अरब के बड़े बड़े मालदारों के बड़े बड़े मालदार अपने बेटों के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी ने हाथे जुलेबीब को भेजा था, और जिस लड़की के लिए भेजा था वो लड़की अंदर कमरे में मौजूद थी, अपने माँ बाप की गुफ्तगू को सुन रही थी, माँ बाप की बात को सुन रही थी, माँ बाप की डिस्कस को सुन रही थी। जब लड़की ने देखा कि मेरी माँ राजी नहीं हो रही है, तो सोचा कहीं ऐसा न हो कि बाप भी राजी न हो। लड़की ने अंदर से आवाज दिया कि अम्मी जान, आने वाले ने जो बात कही है उस पर हाँ कर दे, उसे कबूल कर ले। बाप का दिल खुश हो गया, और जब माँ ने ये देखा कि लड़की भी तैयार है तो माँ भी राजी हो गई। लेकिन बाप ने अपनी लड़की को आजमाने के लिए पूछा कि ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, अगर मैं तेरा निकाह ऐसे आदमी के साथ में कर दूं, ऐसे जवान के साथ में कर दूं, तेरी शादी हो जाएगी, तू तुरंत बनकर अपने शौहर के घर जाएगी, और फिर जब तुझसे तेरी मुलाकात तेरी सहेलियों से होगी तो तेरी सहेलियां तुझे ताना देंगी कि ऐ मेरी सहेली, तेरे बाप को क्या हो गया था कि तुम्हारे बाप ने ऐसे गुमनाम आदमी के साथ में तुम्हारी शादी कर दी है, और तुमसे तुम्हारे बाप को क्या मोहब्बत नहीं थी, क्या उल्फत नहीं थी। आज का इंसान भी यही सोचता है कि अगर ऐसे आदमी के साथ में रिश्ता कर दूंगा तो माशरे वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लड़की का जवाब सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो। लड़की ने जवाब दिया कि अब्बू जान, आने वाले के साथ में मेरा निकाह कर दो, मुझे मंजूर है। आने वाले को मत देखो, भेजने वाले को देखो कि भेजा किसने है। ऐ मेरे अब्बू जान, अगर शादी के बाद मेरी सहेलियां और मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड अगर मुझसे ये कहेंगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी ऐसे के साथ में क्यों कर दी है, तो मैं उनसे बर्दाश्ता कहूंगी कि है मेरे सहेलियों, कान खोल करके सुनो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई ने की होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारे दोस्त ने की होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारे रिश्तेदार ने की होगी, अरे तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप ने की होगी। और मैं वो खुश नसीब औरत हूँ दुनिया की कि मेरी शादी रसूल पाक ने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख में एक नहीं सैकड़ों वाक़ियात ऐसे मौजूद हैं, ज़माने रसूल से लेकर ज़माने सहाबा तक, सहाबा के ज़माने से लेकर ताबईन के ज़माने तक, ताबईन के ज़माने से लेकर ताबईन के ज़माने तक। अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान किस फिक्र के मालिक हुआ करते थे और कौन से किरदार के मालिक हुआ करते थे। लेकिन हाय अफसोस, आज का ये मुसलमान चला गया।
इसे क्या हो गया है, ये क्यों नहीं सुनता है, ये क्यों नहीं समझता है, आखिर इससे हो क्या गया है कि शादी हो या और भी कोई मौका हो हम शरीयत का जरा भी पासो लिहाज नहीं रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काश वो दिन आ जाता, काश वो वक्त आ जाता कि हमारे बच्चों के सीनों में इश्क रसूल कूट कूट कर भरा हुआ होता। हमारा बच्चा चलता तो ऐसा लगता कि गुलाम मुस्तफा जा रहा है, हमारा भाई जा रहा होता तो ऐसा लगता कि देखो ये आशिक रसूल जा रहा है। लेकिन आज हम चलते हैं, दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। आज आप देखें, अपने आप में गौर करें, हमारे पास कौन सी चीज रह गई है? ना तो इस्लामी लिबास है, ना तो इस्लामी चेहरा है, ना तो इस्लामी फिक्र है, ना तो इस्लामी तमद्दुन है। हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज जरूरत है और बेहद जरूरत है कि हम हर मामले में अपने प्यारे रसूल, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलें, अपने आप को इस्लामी सांचे में ढालें, अपनी औलाद को इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश करें। अपने बच्चे को आप दुनिया की तालीम दिलवाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, दुनिया की जितनी तालीमात है आप जाने की कोशिश करते हो। अगर सिर्फ कमी है तो इस बात की है आप दीन नहीं सिखाते हो। बस ले दे करके बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मारपीट के बाद ले दे करके अम्मा पर और कुरान शरीफ पढ़वा दिया, बस समझो बच्चा पढ़ गया। लोग कहते हैं कुरान शरीफ तो पढ़ लिया है, अब क्या पढ़वा दे, अब तो सब हो गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चे को बस दुआ फातिहा भर कर पढ़ा दे, दुआ फातिहा जान जाए। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया 3 तलाक वाला, वो पास हुआ कि नहीं हुआ? आप देखते रह गए, आप यूट्यूब पे देखते रहे, आप फेसबुक पे देखते रहे, आप टेलीविजन पर सुनते रहे, आप जो है रेडियो में सुनते रहे, और सुनने के बाद क्या करते? आपको तो मालूम ही नहीं था कि सही रास्ता क्या है, सही मसला क्या है, सही तरीका क्या है, क्योंकि आपकी सोच बन गई है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब आपकी सोच ये है कि हम और हमारे बच्चे दुआ फातिहा भरकर सीख जाए, तो आप बताओ निकाह और तलाक का कब सीखेंगे? निकाह के बारे में कब सीखेंगे? तलाक के बारे में कब सीखेंगे? नमाज के बारे में कब सीखेंगे? रोजे के बारे में कब सीखेंगे? जवानी के बाद, जब आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तब, जब रस्सी आपकी ढीली हो जाएगी तब, जब आपको बुढ़ापा आ जाएगा तब, जब आपकी बात मानने से इनकार कर देंगे तब, आप बिस्तर पर पड़े पड़े करा रहे होंगे और बेटा कह रहा होगा चुपचाप लेटे रहो, मत करो, दिमाग मत खराब करो, तब आपकी बात मानेंगे। आज वक्त है, आज टाइम है, आज मौका है कि अपने बच्चों को हम इस्लामी माहौल में ढालें। आज आपके बच्चे आपकी बात मान सकते हैं, कल बड़े होने के बाद आपकी बात नहीं मानेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरी है कि जिस तरह आप अपने बच्चों को मोबाइल लेकर के देते हैं, जिस तरह अपने बच्चे को, यहाँ तक कि अगर 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो कभी खिलौना लेकर के आ रहे हैं, कभी साइकिल लेकर के आ रहे हैं, कभी 3 पहिया की गाड़ी ला रहे हैं, ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? मेरा बच्चा इससे खेलेगा, मेरा बच्चा इससे दिल बहलाएगा, मेरा बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिगर पर हाथ, एक बार सोचो कि जिस बेटे के लिए आज आप इतना बेचैन हो, जिस बेटे के लिए आप इतना परेशान हो, कल मैदान महशर के दिन यही लड़का, कल मैदान महशर के दिन यही आपका लख्त जिगर, यही आपका नूर नजर, अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, दीन न सिखाने की वजह से, कल क़यामत के दिन नामे अमाल का हिसाब किताब होने के बाद अगर जहन्नम में डाला गया तो क्या हाल होगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत है, वक्त का तकाज़ा है, अपने आप को बेदार करो, ग़फ़लत की नींद से जागो और ये हिंदुओं की और दूसरे ईसाइयों की रस्म रिवाज को छोड़ करके इस्लामी उसूल को इख्तियार कर लो, इस्लाम के दामन में आ जाओ। कसम खुदा की, जिस दिन आपके दिल में इस्लाम की अज़मत बैठ गई, आपने ये अहद कर लिया कि मैं सुबह उठूंगा तो कुरान की तिलावत करूंगा, मैं अपने कारोबार में निकलूंगा तो दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा, मैं अपने खेत में जाऊंगा तो अल्लाह के रसूल पर सलातो व सलाम पढ़ता रहूंगा। आप ये अहद कर ले कि मैं इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाने की कोशिश करूंगा। कसम खुदा की, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मैदान महशर में भी कामयाब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
اجازت نہیں دے رہا. بہت کچھ دل میں ہے, اتنا چاہتا تھا, لیکن کیا کروں, وقت اجازت نہیں دیتا. اسی لیے میں اپنی بات کو اسی طرح مکمل کرتا ہوں, اور میرے بعد ابھی آپ کو بہت ہی بہترین اور شاندار خلاف سماعت کرنا ہے, چونکہ مجھے دوسری جگہ جانا ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.